Okay, cool. लूप्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, वी वर लुकिंग एट लूप्स। वन क्वेश्चन टू यू एवरीवन, लूप्स का प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है? हु इज प्रैक्टिसिंग लूप्स? यस, नो, इन द चैट quickly. Yes, no, in the chat. 15 lecture 15 for and while loop in Python. Yeah, cool. चलो, एक anyone who is yes practicing, anyone else who is practicing loops? कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है loops को? Anyone else? देखो गाइस, प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं हो रहेगी तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए आगे जाकर, ठीक है। So it is extremely important that you practice these things, otherwise हाँ, फिर आपको नहीं समझेगा। चलो, let me revise first. So yesterday we saw loops on tuple, set and dictionary, ठीक है। So we barely took one example. So this is a tuple. Tuple 1 equals to 2, 3, 4, 5. Anything which is in a round braces is called as tuple. Okay. So we simply ran this for I in tuple 1 print I. Okay. For I in tuple 1 print I. तो इससे हमें सारी वैल्यूज मिल गई। सिमिलरली सेट में भी वही हिसाब था, but the order that we have got is not the same order which was in the set 1. Okay, so this is the simple difference. Okay, this is the simple difference, right? Next, we have seen for dictionary. How was it? It was like uh, key, value pair, key, value pair, key, and value. Pair meaning ये दो, pair, pair. So in the pair, it is called as item, right? Item. So if you want a value only, which is this one, like 100, 200, 300, you will say for I in dictionary one dot values. Okay, dot values. So it will give you only values. If you say dot keys, it will only give you keys. If you say dot items, it will give you key and value pair. Okay, key and value pair. Got it? So dictionary mein it becomes little bit more interesting that you can especially get keys and values, separately, and key value pair as an item, like in a combination. Okay, in a combination. So this is what we have seen in yesterday's lecture. Next, we have seen enumerate function. What is enumerate function? Enumerate जब भी आप iterator के ऊपर enumerate लगा देते हो. So this is your iterator, right? A string or a tuple or a list. So on this iterator, when you add enumerate, it gives you one more insight, that is index. पहले तो वैल्यू तो चला ही रहते हैं हम I नाम से, J नाम से, Q नाम से, but इंडेक्स भी ये दे देगा। ओके, एडिशनली ये इंडेक्स आपको दे देगा वट एवर इटरेटर दैट यू हैव। ओके, तो जेने स्ट्रिंग पे हमने चला दिया, सो वी गॉट इंडेक्स ऑफ ईच वर्ड, index of each word. Then for tuple we ran it, we also got index for each word. So can we also get it for a set set के लिए भी चलेगा? आई थिंक इट वोंट, बिकॉज सेट का कोई इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। सो यू ट्राई दिस, लेट मी नो कि ये सच में लाइक सेट के लिए जैसे हम लिस्ट के लिए वी आर यूजिंग इट, डज इट सेम वर्किंग फॉर सेट एज वेल? ओके, डज इट सेम वर्किंग फॉर सेट एज वेल?
So there is one more thing on a string we have ran. I think you guys have answered this one. And उसके बाद हमने देखा था nested loop. Okay. So nested loop क्या होता है? It is a loop inside loop inside loop inside loop inside loop. आप उसको बहुत लंबा खींच सकते हो. But इतना जरूरत होता नहीं. Nested loop barely कोई कोई यूज करता है. But if it is a complex problem, people might use it, okay, because they want to if they want to iterate multiple times. तो लॉजिक क्या है, इसका प्रैक्टिस करना होगा गाइस, तभी अपने को समझ में आएगा. तो एक क्विकली लॉजिक गो थ्रू करवा देता हूँ. व्हेन दिस लूप विल रन वन टाइम, दिस विल कंप्लीट इट्स ऑल द लूप्स. ये लूप ही कर रहे हैं, राइट, हम लूप चला रहे हैं. तो रेंज 5 मीनिंग 5 बार ये लूप चलना चाहिए. दिस आई, अगर आई 5 बार चलना चाहिए, तो इसके अंदर का जो जे है दैट विल रन 50 कितने 25 टाइम्स. ओके, दैट विल रन 25. नेस्टेड 3 for loop, can you please say again as it's confusing? Of course, of course. Okay, we will practice that. Okay, we will practice that. So when your, this is two level nesting. Okay, two level nesting. For this एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते थे यार, या फिर यहाँ पे न्यू लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस नेस्टेड लूप. नेस्टेड फॉर लूप. तो सेम नेस्टेड लूप वाइल लूप में भी रहेगा, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न फॉर लूप एंड वाइल लूप टुडे. ओके, फॉर लूप एंड वाइल लूप टुडे. So this same logic will work for while also and any other loop also. So now if I am saying for I in range of 3, for I in range of 3, okay, for I in range of 3, print, क्या print करना है? I I I value is I value is I I value is I. I will use this f string to add a, like life in it. If I run this, I will get I value is 0, I value is 1, I value is 2. Okay. ये कब हो रहा है? When like this loop is ending here at this location. At this location loop is ending. Okay. At this location loop is ending. कैसे? Range 3 क्या रहेगा हमारा? Range 3 would look like this. Okay. Range 3 would look like this. This I will visit 0 and print 0. Okay. This is where my loop is ending. ठीक है. इसके अंदर मैं अगर एंटर दबाता हूँ, तो इसके अंदर ये लोकेशन के अंदर जितनी भी चीजें रहेगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइन होगी. मतलब ये बस एक ही लाइन है, ठीक है. एक्चुअली ये एक ही लाइन है. इफ आई रन दिस, इट विल गिव मी द सेम आउटपुट. ओके, इसका मीनिंग इसके अंदर वॉट एवर आई विल राइट, इट विल बी द पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप. ठीक है. सो लेट मी राइट फॉर j in a range of 2. Okay, for j in range of 2, print print j value is j. Okay, j value. इसका मतलब इसके अंदर फॉर के इस बैरियर के अंदर जितनी भी चीज है, that is a part of this I loop. Okay, there is a I loop, there is a j loop now. Cool. So when I loop will run one time, that is when I will visit this 0 one time. Okay, so this should have run completely. But इसके अंदर और एक तो लूप है ना, तो ये लूप भी क्या करेगा? What this loop will do, 0 and 1. Okay, 0 and 1. So this j will visit 0 and 1. So meaning जब I will visit 0, I will visit 0, j will visit 0 and 1. Okay, so if I run this, अभी के लिए बस इतना ही देखो. ठीक है. When I is visiting this 0, j will visit 0 and 1. Again, when I, then ये चीज लूप के बाहर आ जाएगी. ठीक है. This will come out of loop. Then again I will visit 1. तब j फिर से 0 and 1 विजिट करेगा. ओके, तो सेम यही लॉजिक
द सेम लॉजिक अभी आप पकड़ के चलो, ये चीज है नहीं आपके पास, ठीक है, ये चीज है नहीं आपके पास, ठीक है, यू डोंट हैव दिस एंड यू आर सेइंग फॉर के, फॉर के इन रेंज ऑफ टू, रेंज के, तो ये भी अभी टू लेवल ही हो गया, राइट, दिस इज नाउ ऑल्सो टू लेवल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं छोटी सी लेंथ देता हूँ, इसको थोड़ी ज्यादा लेंथ देता हूँ, right? So when j will visit 0, k will visit 0 and 1 as well. Okay, k will visit 0 and 1. When k will visit 1, sorry, j will visit 1, k will visit 0 and 1. So इसके अंदर एक, इसके बाहर एक लूप चल रहा है। So when I, अभी अभी ध्यान से देखना है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। When I think मुझे आवाज नहीं आ रहा है। Now it will, when I will visit 3, I will visit 0, j will visit 0, and k will visit 0 and 1. Then again j will visit 1, then k will visit 0 and 1. इसके अंदर का कंप्लीट होना चाहिए, जब ये कंप्लीट होगा तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है, और अगर ये दोनों कंप्लीट हो गया देन इट विल हैपन, ठीक है, लाइक दिस। सो इफ नाउ आई रन दिस, यू कैन सी व्हेन I इज 0, जब आई इसको विजिट करेगा, इसके अंदर का सारा ही, लाइक टू विजिट आई को फिर से 1 को विजिट करने से पहले ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके अंदर जो भी चीज है, ठीक है, द कोड नीड्स टू गेट कंप्लीट, ओके, द कोड नीड्स टू गेट कंप्लीट। तो फिर जे का 0 एंड 1 कंप्लीट होना चाहिए, बट फॉर जे टू कंप्लीट 0 एंड 1, जब जे 0 को मीट करने जाएगा, के को 0 एंड 1 कंप्लीट करना होगा। So that is why when I is 0, I is 0, and j is 0, k is 0 and 1. K is 0 and 1. Okay. Again, j is 1 because j इस लेवल पर आएगा, फिर j is 1, फिर k is 0 and 1, k is 0 and 1. एंड जैसे ही ये वाला इधर का पूरा हिसाब कंप्लीट हो जाएगा, I फिर से 1 को विजिट करेगा, and फिर से अंदर की यही चीजें चलेगी, ठीक है, यही चीजें। So this is what the logic is, guys. दिस इज व्हाट द लॉजिक। इसको ना हर एक लाइन को आपके माइंड में इमेजिन करो। नाउ इमेजिन विथ मी, ठीक है, कंसंट्रेट वेरी केयरफुली। व्हेन आई इज 0, व्हेन आई इज 0, जे हैज टू कंप्लीट दिस टू, ओके, बट जे के अंदर और एक लूप है। सो व्हेन जे इज 0, के हैज टू कंप्लीट, लाइक जे इज 0, के ने कंप्लीट कर लिया, बट अभी जे ने बस 0 कंप्लीट किया है, जे को 1 भी कंप्लीट करना है इसके बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जे विल कंप्लीट 1, जैसे ही जे कंप्लीट कर देता है 1, के विल कंप्लीट दिस 0 एंड 1, ठीक है, के ने 0 एंड 1 कंप्लीट कर दिया। जैसे ही इन्होंने सब अंदर का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ये आउट हुआ आई लूप के लिए, फिर से आई 1 को विजिट करने जाएगा, ठीक है, आई हैज विजिटेड 1। नाउ जे फिर से चल जाएगा, जे को 0 एंड 1 कंप्लीट करना है। जब जे 0 रहेगा तब के ये कंप्लीट कर लेगा, जब 0 1 रहेगा तब ये कंप्लीट कर लेगा, देन इट विल गो फॉर आउटर लूप। जैसे यहाँ पर देख लेना, जे इज 1, लाइक जे इज 0, तब इसने कंप्लीट कर लिया, जे इज 1 तब के ने कंप्लीट कर लिया, फिर आई 2 पे चले गया, फिर से जे इज 0, के ने कंप्लीट कर लिया, जे इज 1, के ने कंप्लीट कर लिया। और अगर और एक लूप रहती या फिर यहाँ पर और एक 4 रहता, राइट, तो आई का लूप स्टार्ट होता। ओके ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ये जो बैरियर है इसके अंदर का सारा आई का कोड है, ये जो बैरियर है दिस बैरियर, उसके अंदर सारा जे का कोड है, और इसके अंदर के का कोड, ओके, लाइक दिस। सो व्हेन यू विल प्रैक्टिस दिस, लाइक ऑलमोस्ट इसके अंदर 10 20 50 जितने भी आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ट्राई टू इमेजिन दिस, आपके माइंड में जब ये चलेगा तब इट विल, तब इट विल happen. Okay, it will happen. So now moving to the next topic of today. If is this clear somewhat? Is this clear somewhat?
और कल के लेक्चर में किसी को और कोई भी डाउट है छोटा मोटा, anyone has some doubt, anyone has some doubt? मुझे देखना था clear 90%, cool, 90% is also good, 90% is also good. जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल लाइक ओके ऐसा था क्या वो, तो ऐसा होगा, ठीक है। ट्राई टू ट्विक दिस, लाइक इसको फिर आप क्या करोगे, इसको मैं 3 करके देखता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, वो देखना फिर अभी क्या चेंज हुआ। अभी फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, तो आई विल चेक व्हाट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा होगा, ठीक है। तो जे, हर बार जे का वैल्यू 0 था, सॉरी जे ने 1 तक आया, अभी जे 2 तक आएगा ऑलवेज, 0 1 2, 0 1 2, ये 0 1 2 तक ही आया। यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, लाइक ये इसी का रेफर करते हो, व्हेन आई इज 0 तब जे ने 1, 0 एंड 1 कवर किया, एंड के ने 0 एंड 1 कवर किया हर बार। व्हेन आई इज 1, जे ने 0 एंड 1 का, देखो ये तो एग्जैक्टली सेम है, ये चीज आपको हर जगह कॉमन दिखी, मतलब जब आई के बाहर कॉमन दिखी ये चीज, सिमिलरली आई के अंदर ये चीज कॉमन है, सॉरी जे के अंदर, जे के अंदर हर एक जे के अंदर ये चीज कॉमन, लाइक दिस, ओके। So let's move on to the next topic. The next topic, that is pass, continue, and break. Okay? Pass, continue, and break. These are some functions. इनके अंदर का डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए. What we need to know is the difference. Okay, what we need to know is the difference. So first of all, let's write some things. ठीक है, या फिर इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक, ठीक है। सबसे पहले तो पास ही समझ के लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, या फिर मैं बोलता हूँ 0 to 3, ठीक है। 0 to 3 क्या रहेगा गाइस, 0 to 3 क्या रहेगा, कैन यू इमेजिन दिस वन, रेंज ऑफ 0 to 3 विल बी 0 1 2, ओके। लाइक अगर मैं सिर्फ 3 भी लिख देता हूँ तो क्या होगा, सेम आ जाएगा, राइट। बट क्या मैं 3 to 2 लिख सकता हूँ, इट विल बी ओनली 2, या इसको मैं 6 कर देता हूँ। हमने रेंज फंक्शन में ही देखा था, राइट, 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट यहाँ पर इंडेक्स रहेगा। एनीवेज, तो मैं फिर से आ जाता हूँ 0 to 3, तो दिस इज माई इटरेटर, ओके, दिस इज माई इटरेटर। आई एम सेइंग if if I is 1, I is 1, pass कर, I'm saying if I is 1, pass, okay, we are learning pass, ठीक है। जब I 1 रहेगा तब pass कर दो, okay। Now let me just print I, कैसे रहेगा I अभी देखते हैं। So now you can see I is 0, I is 1, I is 2, okay, I is 0, I is 1, तो ये इस लेवल पे क्यों नहीं, ये काम करता हूँ मैं, इसको else में डाल देता हूँ, else print I, इसके अंदर ही है ना ये, ओके। हमने फॉर लूप, वी हैव एडेड फॉर लूप के अंदर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट डाल दिया, वो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए मैंने ये डाला, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर, ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। यहाँ पर हमने क्या कर रहा है, वी हैव सीन व्हेन आई इज 1 तब पास कर दो, पास मीनिंग स्किप कर दो, ठीक है। इसके बाद का जो भी रहेगा
उसको स्किप कर दो। तो सबसे पहले क्या होगा, आई विल विजिट जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन, नाउ इमेजिन इफ आई इज जीरो, यहाँ पर है ही नहीं जीरो, आई इज वन है, तो दिस विल बी फॉल्स, ठीक है, दिस विल बी फॉल्स। इफ कंडीशन इज फॉल्स एल्स चल जाता है, राइट। तो एल्स चल गया, एल्स के अंदर क्या लिखा है हमने, प्रिंट आई, तो जीरो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जीरो प्रिंट हो जाएगा। नाउ व्हेन आई विल विजिट दिस वन, okay, when I will visit this one, then ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट। इफ I is one, पास कर दो, पास मीनिंग कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, बस यहाँ पर कुछ डाला ही नहीं ना हमने, ठीक है, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन में व्हेन I is equals to टू, ये फिर से फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स अगर होगा तो एल्स ब्लॉक चल जाएगा एंड इट विल प्रिंट, ठीक है, इट विल प्रिंट like this. One more example let me give you, तो और थोड़ा सा आइडिया आएगा, ठीक है, और थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो if I say for I in range of 0 comma 5, 0 comma 5, same example kind of, if I is equals to 0, okay, if I is equals to 0, ऐड कर दो 0, ठीक है, अदरवाइज पास कर दो, ठीक है, अगर जीरो रहेगा तभी इसके अंदर ऐड कर दो जीरो, ऐसे कुछ लिखा है मैंने, लेट्स सी हाउ व्हाट मेक्स इट मेक, ठीक है। और एल स्टेटमेंट में लगा दूंगा, उसके अंदर मैं बोलूंगा ऐड प्लस इक्वल्स टू वन, ये इंक्रीमेंटल ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, इंक्रीमेंटल ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया। सो नाउ व्हाट हैपन, तो मेरा रेंज ऑफ 0,5 क्या है, दैट आई शुड नो फर्स्ट, ओके, दैट आई शुड नो फर्स्ट। So I will unlock this using this. तो ये रहेगा मेरा 0 1 2 3 4, ओके। When I is, इसको मैं चला देता हूँ, अरे यार हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया ना, ऐड, ये जो ऐड करा है हमने वो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो ऐड किया है हमने वो हम देख रहे हैं, ओके। तो इसके अंदर कुछ लिख दो क्या, प्रिंट ऐड अगर मैं करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड जो है, ये ऐड जो वर्ड है इसको प्रिंट करके, नाउ लेट्स, so we have said जब I जीरो रहेगा तब बेसिकली इसको पास कर दो, हमने बोला है, ओके, इसको पास कर दो। तो बेसिकली I जीरो के लिए ये वर्क ही नहीं करेगा, इट विल लाइक काइंड ऑफ पास, पास मीनिंग क्या रहता है, व्हेन वी यूज पास, फॉर एग्जांपल जब आप रियल लाइफ कोड करोगे तब आपके पास एक बहुत बड़ा कोड रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बहुत बड़ा कोड है, बट सम ऑफ द कोड आपको रन नहीं करना है, यू विल जस्ट राइट ऐसा पास कर दो, तो ये वाला कोड आपका रन ही नहीं होगा, ये वाला कोड। और इसके आगे अगर एक कंडीशन दे दिया आपने, इफ आई इक्वल्स टू टू, ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू टू, फिर पास कर दो, ऐसे अगर आपने बोला, तो जो आई इक्वल्स टू टू रहेगा उसके लिए ये कोड ही नहीं चलेगा, ठीक है, उसके लिए ये कोड ही नहीं चलेगा। देन दूसरी कंडीशंस के लिए इट विल वर्क, ठीक है, जैसे वन के लिए चल गया, वन प्रिंट हो गया, टू के लिए चल गया, टू प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरीके से आई एक आई वर्क करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आई वर्क करता है। ये सिंपल एग्जांपल है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई रेंज इक्वल्स टू 10, आई रेंज इक्वल्स टू 10, इफ आई इक्वल्स टू 2 comma and I equals to 5, पास कर दो, else else print I, ओके। इसका क्या आउटपुट आना चाहिए गाइस, थिंक थिंक इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, एंड add it in the comments, what do you think the output needs to be, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए।
0 1 2 ने तो 2 वाला पास, 3 4 5 पे पास, 6 7 8 9. Okay. Anyone else? Anyone else? Anyone else? Yadnesh? Anyone else? 0 0 1 3 4 6 7 8 9. Right? So if I run this, 0 1 2 2 भी आ गया है, 2 आ गया. अगर मैं सिंपली 2 के लिए चला दूँ तो 2 will not be there. एंड पे क्यों नहीं वर्क करता है? ओके, यहाँ पर और डालना पड़ेगा गाइस. नाउ इट विल वर्क. 2 and 5 is not there. Why? Because हमने and डाला था. ठीक है, and डाला था. and में क्या रहेगा, दोनों भी कंडीशन चेक करेगा, बट वी आर चेकिंग ओनली वन कंडीशन एट वन टाइम. वन टाइम. ठीक है, वन कंडीशन एट वन टाइम. वी वर जस्ट चेकिंग वन कंडीशन एट वन टाइम. ठीक है, इसमें इसमें कंफ्यूजन हुआ या मतलब समझ गया? लाइक मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि व्हाई इट वाज नॉट देयर. पास मींस इट वोंट प्रिंट एनीथिंग. यस, पास मींस इट वोंट, लाइक इसके सामने वाला जो भी रहेगा वो स्किप कर देगा. ऐसे स्किप, स्किप्स समझ, टू स्किप द कोड. ठीक है, उतना पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये कंडीशन पे आप ऐसे लाइक आग झपक गई ऐसे कि ये स्किप हो गया, ये स्किप हो गया, ये वैल्यू नहीं जाएगी आगे. ओके, अभी बहुत बार कैसे रहेगा कि आप कुछ डेटा आपके पास रहेगा, सेल्स डेटा या वॉट एवर डेटा यू विल हैड, एंड देन इन दैट डेटा आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ विलेजेस का डेटा है या फिर मेट्रो सिटीज का डेटा है. मेट्रो सिटीज, विलेजेस एंड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का डेटा है. एंड आपको, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फार्म प्रोडक्ट है, तो आपको टीयर 2 टीयर 3 या टीयर 2 टीयर 1 सिटीज नहीं चाहिए, मेट्रो सिटीज नहीं चाहिए, तो यू विल सिंपली से व्हेन आई इक्वल्स टू मेट्रो सिटी, व्हेन आई इक्वल्स टू टीयर 1 सिटीज पास, तो आपको वो डेटा ही नहीं मिलेगा. यू विल गेट ओनली फार्म डेटा. ओके, लाइक दिस. तो इन दिस वे फार्म इज लाइक कंटिन्यू. नहीं, कंटिन्यू थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताता हूँ. मैं आपको बताता हूँ. स्लाइट डिफरेंस है पास एंड कंटिन्यू में. स्लाइट डिफरेंस है पास एंड कंटिन्यू में. वो क्या डिफरेंस है जानते हैं? ठीक है, टेक्स्ट नहीं लेता हूँ, कोड ही लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, इफ आई इक्वल्स टू 0, कंटिन्यू. ओके, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल आई एच आई आई एल्स प्रिंट आई. ठीक है, when I run this, when I run this, you can see ये लाइन भी वर्क नहीं करी है. ठीक है, इसके अंदर की मतलब अब ये कैसे बताए, स्लाइट डिफरेंस इसके अंदर का जो है. दिस विल लेट यू कंटिन्यू. ठीक है, दिस विल लेट यू कंटिन्यू. पर आई इक्वल्स टू 0 यहाँ पर भी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर भी जब हमने 2 एंड 5 बोला वो भी प्रिंट नहीं हुआ. बट जब आप एक ऐसी कंडीशन देते, इफ 5 इक्वल्स टू 5 कर दो, ठीक है, और इसके सामने कुछ भी मत लिखो, अगर ये रन कर दो आप, तो क्या होगा? एरर आ जाएगा, राइट? एरर आ जाएगा. बट इफ यू सिंपली पेस्ट पुट पास, व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट रन दिस लाइन. ये इसको रन नहीं करेगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट पास विल डू, कि इसको रन ही नहीं करेगा. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, कंटिन्यू के बाद में जो भी है ये प्रिंट नहीं हो रहा है.
अदरवाइज ये कंडीशन भी प्रिंट नहीं हो रही है। ठीक है, ये कंडीशन भी प्रिंट नहीं हो रही है। जैसे मैं ऐसे चला दूँ, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बोल दे इसने। जब आई जीरो को इसने स्किप कर दिया, ठीक है, इट हैज स्किप्ड दी जीरोस। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर ब्रेक का एग्जांपल, फिर से हम पास कंटिन्यू इन सब के एग्जांपल्स क्वेश्चन एंड आंसर में लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, सिमिलर से एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इफ इफ आई इक्वल्स टू जीरो ही ले लेता हूँ। ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू जीरो, इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, इसको ब्रेक कर दो ऐसे बोला हमने। एल्स इसके बाद कुछ भी लिख दो आप, प्रिंट आई। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट, एक प्रिंट लगा देता हूँ इसके आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, अगर मैं ऐसे ही रन कर दूँ तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। तो इसके आगे मैं डाल देता हूँ हेलो। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन आई इज जीरो, ये प्रिंट हो गया और यहाँ पर फ्लो ही रुक गया। ठीक है, ब्रेक विल ब्रेक द सिस्टम। ब्रेक क्या करेगा, रोक देगा। अगर मैं इसी एग्जांपल को अभी ब्रेक समझ लो, अपन फिर से कंटिन्यू एंड पास करेंगे। व्हेन आई इक्वल्स टू 3, 0 1 2 3 पर आ जाएगा ये। ठीक है, 3 पर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 0 पे ये प्रिंट हो जाएगा, 1 पे ये चल जाएगा, 2 पे ये चल जाएगा। बट जब आई इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ये प्रिंट होगा और सिस्टम ही रुक जाएगी। ठीक है, ये ब्रेक लग गया यहाँ पर। तो हमें ब्रेक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो वी गॉट द आइडिया हाउ ब्रेक वर्क्स। ठीक है, वी गॉट द आइडिया हाउ ब्रेक वर्क्स। तो कुछ नोट्स लिखता हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा हमें। ठीक है, लेट्स राइट सम नोट्स, वी विल गेट सम मोर आइडिया। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड pass is used so as to neither express express any statements further, or to bypass the statement. No. We will come there. Okay, we will come there. We will come there. So it is एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस है, वेरी स्लाइट डिफरेंस। ओके, आई वन हुआ तो हेलो वर्ल्ड पे वन आएगा क्या? लेट मी, ओके, ये भी क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं। लेट मी राइट सम नोट्स फॉर यू सो दैट आपको पास, कंटिन्यूस एंड ब्रेक का डिफरेंस समझ में आए। पास actually does not stop our कोड। ठीक है, लाइक ब्रेक जैसे स्टॉप करता है ना, या इट विल नॉट ब्रेक द लूप। ओके, ये थोड़ा पास के बारे में हो गया। नाउ लेट मी राइट अबाउट कंटिन्यू। कंटिन्यू के बारे में राइट करते हैं। तो कंटिन्यू कैसे रहेगा, इट विल इट विल ब्रेक ब्रेक द करंट इटरेशन। ओके, इट विल ब्रेक द करंट इटरेशन एंड hop on to next iteration। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास एंड कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक का तो थोड़ा सा सिंपल ही है। ब्रेक का तो वी नो इट इज यूज टू ब्रेक इज यूज टू ब्रेक द लूप। ओके, लाइक ऑल टुगेदर this together and it will take you out of loop। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये क्या करेगा। अभी ऑलवेज थिंक ऑफ अ लूप। ठीक है, एक लूप चलेगा। आई जीरो को विजिट करेगा, ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, विल नॉट वर्क। आई प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, व्हेन इट विल बी 3, तो ये तो चल गया, बट इसने लूप ही ब्रेक कर दिया।
द लूप जो सर्कल हमारा चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया, इट केम आउट ऑफ लूप। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 हुआ तो हेलो वर्ल्ड पे आएगा। एक एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हम आई को 1 कर देते हैं। ओके, लेट्स मेक एन आई 1। सो नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल आई विल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अरे आई डिड दैट। So this is my range 5 when I will be 0। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्किप हो जाएगा और एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर इसकी वजह से। when I equals to 1 तो ये कोड चल जाएगा, तो हेलो कोड चल जाएगा एंड ये ब्रेक कर देगा, तो इसके आगे जाएगा। तो बस 0 एंड हेलो ये रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर आप यू कैन मेंशन एनीथिंग, यू कैन मेंशन आई ऑल्सो। तो 0 0 1 ऐसे कुछ, 0 एंड हेलो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया लाइक दिस। तो ब्रेक तो हमें पता चल गया कि इट विल जस्ट, जो भी आपका लूप चल रहा है, इट विल ब्रेक दैट लूप। ओके, इट विल ब्रेक दैट पर्टिकुलर लूप। नाउ कमिंग बैक टू आई। सो आई पास, पास के लिए हमने क्या लिखा, इट इज यूज्ड सो एज टू, इट इज यूज्ड टू, जो भी है, to neither express any statement further or it is used for bypass the statement। Okay, and it does not stop our code or break the loop। ठीक है, ये हमारा कोड स्टॉप नहीं करता है, जैसे ब्रेक क्या कर देगा, इसको इंटायरली स्टॉप ही कर देगा। ठीक है, इट विल इंटायरली स्टॉप आवर कोड। तो एक और एग्जांपल मैं पास का दे देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से हमारे पास है लिस्ट 1। ठीक है, उसके अंदर है एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 जो भी है। दिस इज माई लूप। So now when I am saying for I in list 1, ठीक है, this is my iterator, right? If I is equals to 4, पास कर दो। ठीक है, एंड प्रिंट, जब पास करोगे प्रिंट कर दो वी डोंट प्रिंट 4। इस तरीके से पास लिख दो यहाँ पर। एंड एल्स, एल्स क्या रहेगा हमारा, एल्स में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आई। ठीक है, एल्स में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो व्हेन आई इज 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। व्हेन आई इज 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। बट व्हेन आई इज 4 गाइस, तो दिस विल प्रिंट, बट ये नहीं होगा। ठीक है, इट विल नॉट गो हियर। ठीक है, यहाँ पर नहीं जाएगा एंड सो ऑन। तो 5 6 देखो, 4 की जगह पर ये प्रिंट हो गया हमारा, दिस गॉट प्रिंटेड। अगर मैं यही चीज कंटिन्यू पे करूँ तो क्या होगा, what will happen if I do the same on the continue। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाएगा कंटिन्यू एंड पास में डिफरेंस क्या है। कंटिन्यू आ जाओ आ जाओ। कंटिन्यू में अगर मैं ये सेम चीज करवा दूँ तो ये वाला चलेगा नहीं। लेट्स सी, यू कैन सी, जो अगर मैं 4 आई इक्वल्स टू 4 कर दूं और कंटिन्यू कर दूं, जो 4 वाला लूप चलने वाला था ना, जो 4 वाला लूप चलने वाला था, वो उतना, वो लूप स्किप कर देगा। इट विल स्किप द पर्टिकुलर लूप। ठीक है, इट विल स्किप द पर्टिकुलर लूप। ऑलराइट, इट विल स्किप द पर्टिकुलर लूप लाइक दिस। ओके, तो कितना समझा है फिर से। ब्रेक तो हमारा क्लियर है, पास का मैं बता देता हूँ। व्हेन यू विल पुट अ पास, इसके बाद का जो भी स्टेटमेंट रहेगा नाउ, इस मतलब यहाँ पर अभी मैं थोड़े से स्टेटमेंट चेंज करता हूँ। व्हेन आई विल यूज पास, तो वो जो भी लूप है, जैसे ये मेरी कंडीशन आई इक्वल्स टू 4, इसके बाद का जो भी हमारा स्टेटमेंट रहेगा दैट विल गेट स्किप्ड। बट फॉर कंटिन्यू द लूप विल गेट स्किप्ड।
लूप ही नहीं चला, इसके बाद पे फोर चला ही नहीं। ठीक है, ये वाला चला ही नहीं, ये पर्टिकुलरली पूरा ये चला ही नहीं। ठीक है, इट विल स्किप द पर्टिकुलर लूप। और जब ब्रेक क्या देगा, इट विल, यहाँ पर अगर मैं इसी पे अगर ब्रेक डाल दूं तो, इसी पे अगर मैं ब्रेक डाल दूं, ब्रेक डाल दूं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रोक देगा, 2 और 3 पे रोक देगा, 4 से ये ब्रेक मार देगा। ठीक है, इट विल नॉट लेट इट कंटिन्यू, इट विल नॉट लेट इट कंटिन्यू, कंटिन्यू बस 4 वाला स्किप कर देगा। ठीक है, एंड पास क्या करेगा, पास विल बेसिकली, इट विल जस्ट, ये जो इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ना, उसको स्किप करवाएगा। ठीक है, इसको स्किप करवाएगा। अगर मैं पास ना लगाऊं तो क्या होगा, वो भी चला देते हैं, वो भी चला देते हैं नॉर्मल। इफ आई डोंट प्रिंट पास हियर तो व्हाट विल हैपन, इट विल, इट विल प्रिंट, और ये तो सिमिलर सा आ जाएगा। हाँ, ये वाला चल गया ना। यस, तो पास का और एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। बेसिकली पास विल, अभी के लिए कंटिन्यू एंड ब्रेक क्लियर है हमारे पास। someone tried one more question, pass and continue, what is the difference, I didn't get it. Yes, okay। नंबर वाले से एग्जाम्पल से अलग कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या, नंबर वाले छोड़कर। ओके, नंबर लूप तो उसी पे चलेगा, पास एंड कंटिन्यू वाला डिफरेंस, लेट मी गिव यू वन मोर। So mostly in the industry, what we use for pass, कुछ इस तरीके से हम pass mostly we use for like this, okay, like this। For example, मेरा कुछ अगर कोड है, तो वो अगर मुझे रखना है, जैसे मैं most of the time if I use like if main equals to main, ऐसे I write most of the time this loop, name equals to main, कुछ इस तरीके से। तो इफ आई डोंट वांट दिस, तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, बट इफ आई रन दिस आई विल गेट एन एरर। ठीक है, इफ आई रन दिस आई विल गेट एन एरर, so I just write pass here, so mostly it runs। ठीक है, तो pass आपको इस काम के लिए आएगा कि it will like it will not let you get the error first। ठीक है, it will not let you get the error first। so now keep this understanding अभी के लिए। ठीक है, for particularly for pass। ठीक है, particularly for pass। so pass is basically generally used to skip any statement आफ्टर लाइक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पकड़ लो। ठीक है, मोस्टली जब हम इफ फॉर लूप जब हम यूज कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो भी रहेंगे, उसको स्किप करने के लिए खुद, या फिर ये वाला अंडरस्टैंडिंग रखो कि इफ मेरे पास अगर कोई भी कोड है, उसको मुझे बस ये स्किप करना है, मुझे बस नहीं चलवाना है, ये स्टेटमेंट ही नहीं चलवाना है, देन आई विल यूज दिस पास। एंड फॉर कंटिन्यू एंड ब्रेक, लेट्स हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि कंटिन्यू क्या करेगा, जो भी आपने कंडीशन मेंशन करी है, लेट्स से मैंने इफ आई इक्वल्स टू जीरो मेंशन करा है, तो जीरो वाला लूप नहीं चलेगा, बाकी अदर लूप्स चल जाएंगे। एंड अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो जीरो क्या करेगा, अगर मैं जीरो पे ब्रेक कर दूं, तो उसके आगे तो चलेगा ही नहीं बेसिकली। और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था हमने ब्रेक का, ब्रेक इक्वल्स टू 4, तो 2 और 3 पे चल गया, 4 पे तो चला ही नहीं। ओके, 4 पे तो चला ही नहीं। ओके, तो मेरे को एक, सो आई कीप आस्किंग यू सम क्वेश्चन, तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया आइडिया आता जाएगा, या फिर लेट्स राइट समथिंग अगेन। तो पास हम किस लिए यूज कर रहे हैं, टू स्किप द लेट्स से एनी स्टेटमेंट। ओके, कंटिन्यू हमारा रहेगा टू स्किप दी पर्टिकुलर पर्टिकुलर लूप, पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर लूप, जैसे जैसे आई इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो 1 वाला नहीं चलेगा, ये 1 वाला नहीं चलेगा, 0 1 2 3 चलेगा। ब्रेक 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 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट विल इट विल ब्रेक द लूप।
ठीक है। अगर आई इक्वल्स टू मैं 2 कर दूं एंड ब्रेक बोल दूं तो 0 एंड 1 चलेगा, सिर्फ ये नहीं चलेगा। ओके, 0 एंड 1 चलेगा, द रेस्ट विल नॉट वर्क, रेस्ट विल नॉट रन, रेस्ट विल नॉट रन। अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया आ गया है इसका। हैव वी गॉट दिस समवॉट, समवेयर, समवॉट, समवेयर। सम मोर क्वेश्चंस। हाँ, नेम कैन मेक, कैन यू प्लीज से नेम एंड नेम। अच्छा, ये वाला मोस्टली हम कब यूज करते बताएं। काइंड ऑफ डीबगर टाइप होता है ये, ठीक है। डीबगर टाइप होता है। अगर मैं एक कोड दे दूं आपको, चैट जीपीटी से बनाते हैं, थोड़ा बड़े कोड्स होते हैं। गिव मी ए क्लास methods with post that use to test, to test. So usually जब when we have a huge code, ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये क्लास है और ये कुछ मेथड्स है, तो व्हेन आई वांट टू चेक कि ये हर एक मेथड जैसे डिवाइड है ना, डिवाइड, so I will use this if name and name. Okay, so what it does is you can, जो भी आपका कोड है, ये आपका कोड है राइट, इसी को आप इसी के नीचे चला कर देख सकते हो। यू कैन रन दिस जस्ट बिलो दिस वन। तो ये क्लास एंड मेथड्स का जो फंडा होता है ना, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, व्हेन वी विल बी लर्निंग दिस फंक्शंस, इसी के बाद रहेगा मोस्टली, ठीक है। फंक्शंस एंड मेथड्स, क्लास एंड ऑल, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब ये चीज भी आगे मतलब यही होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ये बस एक कंस्ट्रक्टर है पकड़ लो, और आप इनिशियलाइज करोगे आपकी क्लास को एंड देन यू कैन एक्सेस योर फंक्शन। तो अभी ये नहीं समझेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने फंक्शंस भी नहीं पढ़ा है, क्लास भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। वी हैव जस्ट लर्न इतना सा, वन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बी इक्वल्स टू इफ इतना ही पढ़ा है। वी गेट टू नो रिटर्न, डेफ एंड क्लास, ठीक है। तो लेट्स नॉट, अब थोड़ा सा उसको नहीं समझा तो भी चलेगा अभी के लिए, ठीक है। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, ओके, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, यूट्यूब पे कोई विष्णुदास बोल रहे हैं, ब्रो यू आर ऑल ऑसम, कीप गोइंग, थैंक यू। नंबर वाले से एग्जाम से अलग कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? कि एक अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं, इटरेटर चेंज कर देते हैं। तो लेट्स से यू हैव अ स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। यू हैव स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इफ आई इन इफ आई इन स्ट्रिंग, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रिंग बोल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलूंगा प्रिंट आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर एक चीज, और आई होता है ये, ठीक है, हर एक एक चीज दे देगा मुझे। तो इफ आई इज एच, इफ आई इज एच पास कर दो, बाकी प्रिंट आई। तो एच के टाइम पे जो भी एच रहेगा, दैट विल गेट काइंड ऑफ अगेन स्किप्ड, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट स्किप कर रहा है guys, ठीक है। आप बोलोगे फिर ये कंटिन्यू में भी तो यही हो रहा था, कंटिन्यू में भी तो यही हो रहा था, ठीक है, कंटिन्यू में भी यही हो रहा था, बट कंटिन्यू क्या करेगा, ये लूप जो चल रहा था उसको स्किप करेगा। मतलब बैकएंड में इसका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ऑल्दो अभी आपके हमारे लिए वो सेम ही दिख रहा है, बट इन द बैक एंड कंटिन्यू लूप्स के लिए मोस्टली वर्क होता है, बट जो पास होता है दैट मोस्टली वर्क्स ऑन द टू स्किप एनी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट स्किप हो गया, या ये स्टेटमेंट स्किप हो गया हमारा, दिस स्टेटमेंट गॉट स्किप्ड एंटायरली, ओके। इसके ऊपर का जब भी आप पास यूज करोगे, वेन एवर यू विल बी यूजिंग पास, इसके ऊपर का स्टेटमेंट ही स्किप हो जाएगा,
ओके लाइक दिस। बट कंटिन्यू जो रहेगा वो लूप स्किप करे, जो हमारा लूप चल रहा था वो स्किप करेगा। एंड ब्रेक तो ब्रेक ही कर देता है, ठीक है। ब्रेक का हिसाब एकदम एकदम बराबर है। ओके, एकदम लाइक वो बता देता है कि दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ओके, I hope somewhat understanding that we have got, somewhat understanding on this we have got. You got this one also somewhat. इसमें और क्वेश्चन है तो we can discuss. अभी के लिए let me know if this is clear. Okay. पास क्या करेगा? It will skip the statement. Continue will skip the loop and break will break the loop. These are three liners. So whenever interviewer will ask you, tell me the difference between continue statements only skip the loops. Yes, yes, that particular statement, that particular loop only, ठीक है। अगर मैं एच आई इक्वल टू एच बोला तो एच वाला लूप स्किप हो जाएगा। एच यहाँ पर आया ही नहीं। ओके, एच यहाँ पर आया ही नहीं। इसके इसके नीचे भी अगर मैं कुछ डाल दूँ तो इट विल नॉट गेट, इट शुड नॉट, वो लूप ही टूट गया। हम यहाँ पर क्या देख रहे थे? वी आर लुकिंग एट लूप्स, राइट? वी आर लुकिंग एट लूप्स। तो अगर मैं यहाँ पर कहीं पे कंटिन्यू कर दूँ, कंटिन्यू कर दूँ, कब कब इफ I equals to 1, ठीक है। now what will happen now what will happen now what will happen जब I 0 करेगा, ये ये वाला तो ये चल जाएगा, बट 1 वाला स्किप हो जाएगा। देखो, I equals to 1, ठीक है। 1 देख रहे हो? इस इनसाइड दिस देर इज नो समथिंग, इतना कुछ है ही नहीं। फिर आई का लूप जो है, जो आई का लूप है वो पूरा स्किप हो गया, उसके अंदर का सारा स्किप हो गया। एंड डायरेक्टली आई रीच टू टू, डायरेक्टली आई रीच्ड टू टू, ठीक है। so this is what continue does. Okay, this is what continue does. पास इट्स लाइक, पास देखो भाई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पास क्या करेगा? इट विल जस्ट स्किप, मतलब ये वाला स्टेटमेंट स्किप कर देगा। आई इक्वल्स टू 1 वाला स्टेटमेंट स्किप कर देगा, बट इट विल नॉट स्किप दीज लूप्स। देखो, इट यू कैन सी द डिफरेंस नाउ इन अ रियल सेंस। व्हेन आई इक्वल्स टू 0 इट्स स्टिल रनिंग, ठीक है। बट दिस स्टेटमेंट जो इसके ऊपर था दैट गॉट स्किप्ड, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा पास हो गया, ये मेरा कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, लाइक आई इक्वल्स टू 0, इसके बाद के अंदर के जो भी लूप्स चलने वाले थे दैट गो दैट गॉट स्किप्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी रिटर्न दीज थिंग्स। व्हेनेवर एनीवन आस्क यू पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक का मुझे डिफरेंस बता दो। तो जो पास है इट विल जस्ट स्किप द एनी स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट ये स्किप कर देगा, ठीक है। बट लूप स्किप नहीं होगा। कंटिन्यू विल स्किप दैट पर्टिकुलर लूप। कौन सी वाली? ये वाली लूप ही स्किप होगी, आई इक्वल्स टू 1 वाली लूप, जो इतनी चलनी चाहिए थी, ठीक है, इसके अंदर। एंड ब्रेक का अगर लगा दो तो फिर यू नो व्हाट विल हैपन। ब्रेक अगर मैं लगा दूं, ब्रेक अगर लगा दूं, बस एक ही लूप चलेगी लंबी वाली, ये वाली आई इक्वल्स टू 1 तक चला, बाकी चला ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ओके, आर वी गुड हियर? आर वी गुड हियर? आर वी गुड हियर? So can we? Yes, no, guys. Let me know. Yes, no. Good, cool. Yes. Anyone else? So I'm stretching today's lecture by 15 minutes. ठीक है?
तो कल फ्राइडे सैटरडे भी है, तो आई होप यू आर ओके। किसी को कोई भी अर्जेंट वर्क है तो लेट मी नो, फिर अदरवाइज वी कैन वी कैन स्टॉप। किसी को भी है, अगर एक को भी कुछ किसी को भी थोड़ा बहुत वर्क है तो लेट मी नो। 15 मिनट ही स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर है आपको तो लेट मी नो, राइट? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द वाइल लूप। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, बट वाइल लूप देखते हैं, जैसे हमने फॉर लूप देखा, वी लर्न द फॉर लूप, लेट्स लर्न वाइल लूप। ये थोड़ा उससे बहुत आसान है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। So let me just give you one example. There will be two examples, but एक example देखते हैं. Let's say while a is less than or equals to 5. ठीक है, it means हमें a भी लगना है कहीं पे, ठीक है, a भी a equals to, for example मैंने 0 रख दिया, ओके, 0 रख दिया। मैं बोलूंगा प्रिंट करो a को, ठीक है, आई विल से प्रिंट करो a को, और यहाँ पर आई विल प्लेस ए लॉजिक a equals to a plus 1। ठीक है, a is equals to a plus 1। सर ये क्या क्या लिखा, मुझे कुछ भी समझ में कोई लोड नहीं है, हम सब सीखेंगे ये वाला। ठीक है, सबसे पहले इसी को बोलेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलेंगे लूप, ये हमारा लूप पॉइंट है। ठीक है, लूप के अंदर क्या क्या दिख रहा है हमें, वाइल दिख रहा है, ठीक है, वाइल दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें कंडीशन दिख रही है, कंडीशन। ठीक, कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, और इसके बाद हमें दिख रहा है एक प्रिंट स्टेटमेंट, या फिर इसको आप कोड बोल दो, ठीक है, रनिंग कोड। और यहाँ पर हमें दिख रहा है एक इंक्रीमेंटल जॉब। ठीक है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ए के अंदर 1 1 1 ऐड कर रहा है। ठीक है, जितने भी बार ये लूप चलेगा उतने बार ये 1 ऐड करेगा। ठीक है, ये सिमिलर सा चीज हमने कहीं पे देखा था, फॉर लूप नहीं देखा था। ओके, जितनी बार लूप चलेगा ए के अंदर वैल्यू ऐड होगी। तो फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू, अभी इसको थोड़ा सा और क्लोजली देखते हैं। ठीक है, एवरीवन विल एवरीवन विल फोकस। ठीक है, एवरीवन विल फोकस, लेट मी जस्ट रन दिस। हमें सिमिलर सा आउटपुट आया, राइट? 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही कुछ तो हम फॉर लूप में भी कर रहे थे। ओके, सो नाउ वाइल, हम कैसे बोल रहे हैं, वाइल वाइल बोल रहे हैं कि जब जब ए का वैल्यू 5 5 या 5 से कम रहेगा, 5 और 5 से कम, तब ए को प्रिंट करो। जब ए का वैल्यू 5 और 5 से कम रहेगा, तब ए को प्रिंट करो। ए क्या है हमारा, अभी के लिए 0 है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं चलाऊं तो क्या आएगा, सिर्फ 0 0 0 0। अरे 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 अरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं मीट हो रही है। कहीं पे रोक दो। काफी गया वो। Where is my while loop? ये अनलिमिटेड चल गया, लाइक मतलब चल गया वो, क्योंकि देयर इज नो स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, बिकॉज ए 5 के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। देख लो कितने जीरो आ गए। ठीक है, देयर वाज टू मेनी जीरोस। फिर से आना पड़ेगा मुझे ऊपर। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल ऑपरेशन डाल देता हूँ। फिर से कमिंग बैक गाइस, क्यों वो हुआ वो भी हमें पता चलेगा। नाउ फोकस, व्हेन ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, जब ए 5 एंड 5 से कम की जितनी भी वैल्यू रहेगी, तब प्रिंट करो ए को। अभी के लिए मेरा ए 0 है, इसलिए मेरा 0 प्रिंट हो गया। व्हेन ये फर्स्ट टाइम चलेगा, फिर से यहाँ पर वैल्यू चेक होगी। ठीक है, पे ए 0 प्रिंट हो गया, 0 प्लस 1 1। ठीक है, नाउ फिर से यहाँ पर चेक हो, ए इज इक्वल्स टू 5 और 5 से कम है क्या, राइट, बिकॉज 1 इज देयर, तो फिर से 1 प्रिंट हो गया।
फिर से 1 के अंदर 1 ऐड हो गया, यहाँ पर 2 चलेगी। फिर से यहाँ पर चेक होगा क्या a इज इक्वल्स टू एंड लेस देन 5, जो कि 2 था, फिर 2 प्रिंट हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर चेक होगा 5 इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 5, ये प्रिंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर 5 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर चेक होगी वैल्यू क्या a 5 और 5 से कम है, which will be false because a का अभी अपडेटेड वैल्यू 6 है। तो ये लूप यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, ये लूप यहाँ पर रुक जाएगा। जब मैंने इसको कमेंट आउट किया था तब इसके अंदर वैल्यू ही ऐड नहीं हो रही थी और ये कंडीशन हर बार ट्रू हो रही थी। ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ट्रू 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 ट्रू, और ए प्रिंट होते जा रहा था बस अनलिमिटेड टाइम, बिकॉज इसको फॉल्स वाली कंडीशन आनी चाहिए लूप के बाहर आने के लिए, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स, अगर जब कब ये कंडीशन फॉल्स होगी, देन ओनली दिस लूप विल ब्रेक, ओके, दिस लूप विल। लेट मी गिव यू सम नोट्स, ओके, लेट मी गिव यू सम नोट्स सो दैट आपको और थोड़ा आइडिया आएगा, ठीक है। तो लेट्स से व्हाइल कंडीशन रहेगा सबसे पहले, ठीक है, उसके अंदर कोड रहेगा एंड उसके अंदर एक, ठीक है, यही चीज मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूँ, ये व्हाइल कंडीशन रहेगी, इसके अंदर ये कोड रहेगा एंड इसी के अंदर क्या रहेगा, एक मैनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी रहेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट का एग्जांपल बता दो, यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस। तो दिस इज योर व्हाट सिंटैक्स, ये क्या रहेगा आपका सिंटैक्स, हैशटैग सिंटैक्स, सिंटैक्स, ओके, दिस विल बी योर सिंटैक्स, ओके। नाउ जो कंडीशन रहेगी, जो कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाली, ठीक है, कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। जो कंडीशंस रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू एक रहेगी, राइट, देयर विल बी ट्रू कंडीशन, देयर विल बी फॉल्स कंडीशन, ठीक है। जो ट्रू कंडीशन रहेगी, it will execute the block whenever the condition will be true, it will execute the block of code, ठीक है। जब फॉल्स रहेगा तब क्या होगा, इट विल एंड द लूप, ओके। जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये बंद हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 15 कर दिया तो जब तक ये ऐड करते जाएगा 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, जब ये 16 हो जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टूट जाएगा, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। अभी के लिए मैं इसको फिर से पास कर देता हूँ, ओके। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई कि अच्छा ट्रू जब तक रहेगा तब ये चलती रहेगी कंडीशन, ये कंडीशन जब तक भी ट्रू रहेगा, कंडीशन के बारे में देखते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा इट विल रन रन रन, ठीक है, इट विल रन रन एंड रन, ओके। इसी के अंदर एक एल्स वाला भी रहता है, वो भी सीखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा थोड़ी सी देर में देखते हैं, ठीक है। कुछ और नोट्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। while loop is while loop is used to execute a block of code repeatedly until the condition is satisfied, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। क्या लिखा है हमने, while loop is used to execute the block, कब तक ये एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड है, मीनिंग कंडीशन, ये जो भी कंडीशन इसके सामने दी है वो ट्रू है, तब तक ये while कोड चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। एंड जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी या सेटिस्फाइड या फिर आई विल से ट्रू, तब तक चलेगी, अदरवाइज ये फेल हो जाएगी, ठीक है। इतने नोट्स, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, one more example for that, so that you will get more understanding. इस बार आई एम सेइंग a equals to 6, ठीक है, आई एम सेइंग while a is greater than and equals to 6, ठीक है। एंड होना ही जरूरी है क्या, नहीं रहा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रिंट a,
ओके, प्रिंट ए। और यहाँ पर मैं एक डिक्रीमेंट लगा दूंगा। डिक्रीमेंट क्या रहेगा, a-1। ठीक है, ये मेरा कंडीशन हो गया। ठीक है, ये मेरा कंडीशन हो गया। दिस इज माई कोड, दिस इज माई कोड। ठीक है, और ये मेरा रहेगा डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट अभी सिंपल हिसाब है। अभी ए का वैल्यू 6 है। ठीक है, इट विल गेट चेक। यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं तो 5 डाल देता हूँ। 5 डाल दो, इक्वल्स टू डाल दो, 5 डाल दो, क्योंकि ये ए से बड़ा है क्या, 5 इज माई 5 बिगर देन, या फिर 0 से स्टार्ट करना होगा, 0 to 6, while a is greater than 0। ओके, while a is greater than 0। अभी मेरा a क्या है, 6 है। दिस विल बी ट्रू, तो मेरा 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 के अंदर से मैं एक माइनस कर दूंगा, तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से चेक होगा, क्या जीरो से, क्या ए 0 से बड़ा है, राइट, 5 था, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर से माइनस होगा, जब 1 आएगा ए का वैल्यू माइनस करते करते, देन आई विल से ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 0 पकड़ता हूँ अभी के लिए। देन वी विल चेक, क्या ए इज ग्रेटर देन 0, which will be false because a is equals to 0, not greater than 0। so this is how it will work। ठीक है, 0 तक, मतलब 0 तक रुक जाएगा। अगर यहीं पे मैं इक्वल्स टू ऐड कर दूं तो यहाँ पर एक 0 भी आ जाएगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो गिव यू 0, बिकॉज यहाँ पर जब ये 0 वैल्यू रहेगी इट विल गेट चेक्ड अगेंस्ट इट, और अगर ये ट्रू रहेगा तभी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। Okay, then only it will get print, otherwise it will not get print। Okay, it will not get। ये वाला हिसाब, मतलब हैव टू गॉट दिस वन कि भाई ये क्या कर रहा है, दिस इज जस्ट डिक्रीमेंटिंग। ये जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, ये वैल्यू यहाँ पर चेक होगी एंड उस हिसाब से कोड चलेगा। अगर ये ट्रू है तभी ये कोड चलेगा, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये कोड रुक जाएगा। okay? यही करते थे हम इफ एंड एल्स में, व्हेन द इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ये करो अदरवाइज रुक जाओ। बट वाइल क्या करता है, वाइल क्या करता है, वो बस लूप चलाता है। ठीक है, इन विच कंडीशन वी यूज फॉर एंड वाइल, यस आई विल टेल। जब लूप करना हो, लूपिंग हो, लूपिंग, लूप, दीज आर लूप्स। जब आपको लूप चलाना हो तब वाइल एंड फॉल फॉर कंडीशन चलेगी। तो वाइल पर्टिकुलरली कब चलती है, जैसे मैं एग्जांपल आपको एक दूंगा। देर इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, कैलकुलेट ए फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेट ए फैक्टोरियल यूजिंग वाइल, यूजिंग वाइल। तो अगर ये, इसको मतलब आपको वाइल लूप पकड़कर आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस कोड मे बी टुमारो बिकॉज वी आर ऑलरेडी अबाउट टाइम। बट फॉर एंड वाइल, फॉर तो बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है फॉर लूप। whenever you will be working on the data set, फॉर लूप बहुत जगह पे यूज होता है, बट सिंपल रहता है, लाइक यू जस्ट दिस काइंड ऑफ फॉर लूप्स यू यूज। ठीक है, सिंपल एक इटरेशन चल जाता है। बट इसके अंदर का जो कोड रहता है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा बहुत बहुत बार कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं हम। दैट्स व्हाट वी व्हेनेवर इफ वी वांट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस वाइल लूप, और ये फैक्टोरियल भी मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस अगेन, वाइल लूप मैं फिर से बताऊंगा आपको, सो नो वरीज। ठीक है, स्टिल हैव यू गॉट दिस वन, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल जॉब। इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल जॉब कैसे कर रहे हैं हम बस स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका, यहाँ पर ऑलवेज देयर विल बी अ कंडीशन। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, जब तक ट्रू है तब तक ये कोड चलेगा। ओके, जब तक ये ट्रू है तब तक कोड चलेगा, और उसके बाद कोड बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन कोड विल गेट आउट ऑफ योर
आउट ऑफ योर लूप, ठीक है, इट फॉल्स हो गया, खत्म, बात खत्म। और ये यहाँ पर आप डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट चला, ठीक है। प्रैक्टिस दिस सेम एग्जांपल यहाँ पर 6 7 10 20 डाल के देखो, यहाँ पर ये कंडीशन चेंज करके देखो, इक्वल्स टू लेस देन। बस ये सोचना कि अल्टीमेटली ये कंडीशन एक फॉल्स आनी चाहिए, नहीं तो जैसे मेरा कोड चल गया था ना, अगर मैं ये जीरो से स्टार्ट कर दूं तो कोड प्रिंट ही नहीं होगा। बट अनलिमिटेड लूप में मत जाने दो कोड, ठीक है। एनीवेज वो एक 1000 या 2000 प्रिंट्स के बाद रुक जाएगा कोड, बट दिस इज हाउ इट वर्क अभी के लिए। एनी इफ वाइल सीम्स अ बिट सेम, इफ एंड वाइल, यस यस एग्जैक्टली, उनका काम सेम ही है, ठीक है। इफ एंड वाइल आर यूज्ड फॉर लूपिंग, ये बस लूप लूप तैयार, ये बस घूमते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कुछ डेटा है, वी हैव सम डेटा 1 2 3 4 5, अगर आपके पास जो भी वाइल या जो भी लूप रहेगा, वो बस गो थ्रू करेगा, इसको जाएगा चेक 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 करेगा। ये हो गया इफ में, सॉरी फॉर में, फॉर लूप में। बट वाइल क्या करता है, वो उसको एक कंडीशन चाहिए रहती है, उसको अगर कंडीशन कंडीशन मिली ना, तो वो कंडीशन तक चेक करेगा, दैट इफ ए इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये चलेगा, तब तक ये जाएगा चेक करेगा, जाएगा चेक करेगा, जाएगा चेक करेगा, लाइक दिस। इसलिए तो इनको लूप्स कहा जाता है। लूप मतलब दैट इज अ राउंड सर्कल, circle and circle and circle. Like it will go, then do the code, then go, then do the code, then go and execute the code, then go and execute the code, then go and execute the code. So जो yes yes no, the basic difference is while को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लगता है, ठीक है, बाकी सेम है, बाकी सेम। फॉर को भी यहाँ पर कंडीशन लगती है, कुछ ना कुछ इटरेटर लगता है, तो वी कैन कॉल दिस एज अ, यहाँ पर इसको कंडीशन बोल दो, इसको इटरेटर बोल दो, ठीक है। ये इटरेट करेगा थ्रू थ्रू अरे थ्रू दिस डेटा ओनली, ठीक है। तो नाउ ऑल्सो फॉर के लिए डेटा लिमिटेड है, दिस इज लिमिटेड, बट वाइल को आप ओपन रख सकते हो, यू कैन लाइक, अगर मतलब मैं यहाँ पर जैसे मैं बोला ना, राइट, इफ आई मेक दिस 50, इट विल गो बियॉन्ड लाइक टिल 50 चले जाएगा, 500 बोल दोगे तो 500 भी चले जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको ओपन है, इसको आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो ऑन अ सिंगल कंडीशन। बट फॉर का वैसा यू शुड हैव द लॉन्ग डेटा, गुड ओके, टू इटरेट थ्रू। तो सॉरी सॉरी, लास्ट में मैं आई डिडंट गेट यू इन द एंड। यस 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 यस, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट लेट्स टेक इसको, let me run. Instead of while, if I simply say if, so what will happen now? It will check if a is greater than and equals to 5, print a. Okay. This will only check this condition and it will stop. It will not loop through it. Okay. It will not loop through it. अभी a is 0, तो ये condition true हो गया, right? A is less than equals to 5, right? So what happened here is this condition got true and it print it's 0, and ये यहाँ पर इसने एडिशन भी कर दिया, बट नेक्स्ट के लिए ये लूप कंटिन्यू हुआ, बिकॉज इफ इज नॉट अ लूप, इफ विल जस्ट चेक वंस, ओके, इफ विल जस्ट चेक वंस। फॉर एंड वाइल आई वाज कमिंग देयर कि जो साइंटिस्ट हैं, उनको पता चल गया कि इफ तो चेक कर रहा है, बड़ी बढ़िया चीज है, सही चीज है, ये काम भी अच्छा कर रहा है, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था जो आपके डेटा में बार बार जाकर चेक करे एंड आपको
इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसको मल्टीपल टाइम्स आप रन कर सकते हो। अगर मुझे हर बार ये कंडीशन चेक करनी तो मुझे हर बार अलग अलग लाइक इसके इसके नीचे और एक मैं ये कंडीशन डाल दूंगा वन, फिर वन के लिए चेक करूंगा, फिर टू के लिए चेक करूंगा, थ्री के लिए चेक करूंगा, तो ये उनके लिए बोरिंग हो रहा था। तो दे वांट समथिंग जो इटरेट करे वैल्यूज को। तो दैट्स व्हाई दे डेवलप दिस फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, इस लिस्ट के अंदर जाता है, इटरेट करता है, टू को चेक करेगा, थ्री को चेक करेगा, फोर को चेक करेगा। ठीक है, सिमिलरली वाइल भी वही करेगा जब तक आपका कंडीशन when until your condition satisfied, like जब तक वो false नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। So this is the like very fundamental for if and sorry for and while कि scientists developed these things for iterating on the data set पे iterate करने, उसको घुमाने के लिए इसके अंदर वैल्यूज अंदर जाकर चेक करने के लिए। ओके, कूल, गुड डिस्कशन एंड लेक्चर। ओके ब्रो, आई डिडंट, सब कोई यूट्यूब पे बोल रहा है आई I didn't even know the basics of coding going to the college in the 2 months. What should I do? Join कर लो यार. So there is a description in the description. There is a link in the description. Group join कर लो और regularly attend करो, आपको सब समझ में आ ही जाएगा. ठीक है? Cool. If you have some more questions, let me know, guys. If you have some more questions, let me know. If you have कुछ कुछ लेक्चर थोड़े से होंगे extend. ठीक है? So let's be prepared for that. If you don't have any questions, so we know. We type win in the comments so that we get an idea कि most of the lecture हमें पता चल चुका है, and then we can close for the day and continue. So अभी यहाँ से you can see the lecture will get the lectures will get more interesting and interesting and interesting. But to enjoy these lectures, you need to do the practice, guys. ठीक है? You need to do the practice. For loop, while loop इतना ज़्यादा interesting है, but if you just need practice. ये files कर लो, या फिर there are files on the GitHub also. Loops in Python ये कर लो, while loop कर लो, and if loop भी कहीं पे, for loop भी कहीं पे रहेगा। ठीक है? Do those loop, अच्छा वो दो तीन फाइल ही है। So do these files जैसे while loop and loops in Python, ये वाली फाइल्स कर लो। So this is enough for you to understand. और अलग अलग छोटी मोटी वैल्यूज चेंज कर करके डू दिस फॉर एल्स, ट्राई करो। ठीक है, वी विल कंटिन्यू while loop tomorrow as well. Okay, if there are no more questions, there are no more questions, let's meet tomorrow morning 8 a.m. for machine learning. tomorrow हम linear regression सीखेंगे। कल मॉर्निंग में हमने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन किया है। So those who want to know the introduction, you can check this. मैंने डाला था शायद लिंक ग्रुप में। गो थ्रू दिस, ये इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ है कल का। ठीक है, 50% के आगे चला देना, मतलब आधा कोड यहाँ तक कहीं पे रिवीजन है, उसके बाद का कोड चला देना। तो आपको मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, समवट जनरल डिस्कशन हुआ है, बट क्या एल्गोरिथम होती है पता चल जाएगा। नथिंग रिलेटेड टू पाइथन एंड ऑल, तो आपको सारा समझ में भी आएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो एंड बाय बाय, गुड नाइट। ओके, ऑलराइट गाइस, फ्रॉम यूट्यूब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल कंटिन्यू। टुमारो मॉर्निंग में मशीन लर्निंग सीख रहे हैं एंड इवनिंग में पाइथन सीख रहे हैं। ओके, ऑल द लेक्चर्स आर ऑलरेडी ऑन द यूट्यूब, यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर अगर ये जीरो टू हीरो है, सारे ही लेक्चर्स है इसके अंदर। एंड पाइथन में किसी को नंबर स्पेशली सीखना है, पांडा सीखना है तो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना है तो यहाँ पर है। इवनिंग बैच जो हमारा चल रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें सारे ही लेक्चर हैं एक्सेप्ट लेक्चर 2, ये वाले सारे लेक्चर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
एंड आज का लेक्चर था 14-15। तो बाकी लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे 14 या 15 आज का चल रहा है। Okay, I will also add these lectures in the in the playlist so that you can continue. Alright guys, this was all about for today. जिसको WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ये वाला WhatsApp ग्रुप जहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और यू कैन ऑल्सो गेट इन दिस पोस्ट, यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कूल, चलो बाय गाइस।